Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you lesson 4, a truly beautiful mind. Okay, about the author. A genius is a person who possesses a very great and rare natural ability of skill in a particular area. Albert Einstein is a scientist, and he is celebrated as the synonym with genius. Born to a Jewish family in Germany. Okay, he gradually showed his scientific intelligence and length, won international fame with the publication of 3 articles on various topics. He received a Nobel Prize in 1921. He advocated peace and democracy. Let's read more about the life of this genius. Okay, यानी अब देखिए, who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What quality do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who looked the world by storm about 100 years ago. In the summer 1905, and 26 years old, published in quick succession 4 breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies, and energy. His works took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space time and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. ओके, यानी इनके बारे में बताया गया है कि ये बहुत शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और ये जो है जीनियस का पर्याय थे. अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother taught Albert was a frack. To her, his head seemed much too large. ओके, यानी बिना किसी ऐसे संकेत के उसका महान बनना नियति है. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था. उसके विपरीत उनकी माताजी सोचा करती थी कि अल्बर्ट सनकी है. उनको माताजी को उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself. Much of time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ओके, यानी जब आइंस्टीन 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन बोलता नहीं था. ओके, 2.5 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन बोलता नहीं था. और क्या होता था कि वो बोलना सीखा, मतलब बहुत कम बोलते थे. ठीक है, और जब अंततः उसने बोलना सीखा भी तो वह सब कुछ 2 बार बोलता था. ओके, सब कुछ 2 बार बोलता था. आइंस्टीन को दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना नहीं अच्छा लगता था और उनके साथ खेलने वाले बच्चे उसे ब्रदर बोरिंग कहकर पुकारते थे. इसलिए वह छोटा बालक अधिकांश समय अकेला ही खेला करता था. उसे विशेषकर तकनीकी या मशीनी खिलौने ही अच्छे लगते थे. कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन माजा को देखकर उसने कहा था, बढ़िया है, बहुत अच्छी है मेरी बहन, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं.
जिससे ये चल पाए, लेकिन वो तो बहुत छोटी थी। ओके, अ हेडमास्टर Otto Neuber, the historian historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but the scenes fairly authentic. Okay, as he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." ओके, यानी क्या हुआ, प्राचीन गणित के इतिहासकार ऑटो न्यूकबार ने बालक आइंस्टीन के विषय में एक कहानी सुनाई। वह किसी दंत कथा सा लगता था, किसी पुरानी कहानी जैसा लगता था, किंतु यह पूर्णतः प्रामाणिक लगती थी, क्योंकि उसने देर से बोलना प्रारंभ किया था, इसलिए उसके माता पिता चिंतित रहते थे। ठीक है, अंत में एक रात्रि भोज की मेज पर यानी डिनर लेते समय उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए उसके माता पिता ने उससे पूछा, तूने पहले कभी भी एक वर्ड नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला? अल्बर्ट ने उत्तर दिया, इसलिए क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था। ठीक है, अब तक सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था। ओके, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. Okay, यानी एक बार जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने उसके पिता को बुलाया और कहा कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में 4 चीज़ें चुने, यानी चाहे जो भी चुने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कभी भी किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उसकी माता ऐसा चाहती थी, उसकी माता ऐसा करना चाहती थी। वह बाद में प्रतिभा संपन्न अव्यावसायिक शौकिया वायलिन वादक बना। उसने आजीवन अपने इस कौशल को बनाए रखा। ओके, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so still stiffed there that he left the school for good. ओके, बट अल्बर्ट यानी ये जो है आइंस्टीन जो है, इनका जो वायलिन में विशेष रुचि थी और उसी को उन्होंने अपने आजीवन कौशल बनाए रखा उसी में। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बुरा शिष्य नहीं था। वह म्यूनिख में हाई स्कूल में गया, जहां आइंस्टीन व परिवार तब जा बसा था, वहीं पे थे सब लोग। ओके, और जब वह 15 महीने का था, वह लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता था। ओके, आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन को घृणा से देखता था और वह बहुधा अपने अध्यापकों से भिड़ जाया करता था। 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन को वहाँ इतनी घुटन का अनुभव हुआ कि उसने सदा के लिए विद्यालय छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland.
in a city which was more liberal than Munich. यानी पिछले वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे। उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया था। लंबे विचार विमर्श के पश्चात आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड, एक ऐसे शहर में जो कि म्यूनिख के लिए उदार था, अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. यानी आइंस्टीन गणित में बहुत बुद्धिमान था तथा उसकी भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी, और स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने म्यूनिख के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। लेकिन विज्ञान यानी साइंस एकमात्र वस्तु नहीं थी जो उस वॉलरस की सी मूंछों वाले उत्साही नवयुवक को आकर्षित करती थी। ओके, प्लीज टर्न ओवर। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। ओके, यानी उसने अपनी सहपाठी, साथ में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, उसे यानी उसने अपनी एक सहपाठी छात्रा मिलेवा मैरिक, जिसे उसने चतुर प्राणी पाया था, यानी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, उसमें रुचि ली। यह युवा सर्ब स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि आइंस्टीन का विश्वविद्यालय यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था जहां स्त्रियां उपाधि ले सकती थीं। आइंस्टीन को उसमें फिलिस्टियंस, उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में वे लोग जिनके साथ निरंतर असहज था के विरुद्ध एक मित्र दिखाई दिया। इस युगल को प्रेम हो गया था, और वे पत्र हैं जिनमें उन्होंने अपने प्रेम को विज्ञान एवं सहानुभूति का मिश्रण करते हुए लिखा। आइंस्टीन ने लिखा, कितना प्रसन्न एवं गौरवान्वित मैं होऊंगा जब हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। ओके, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. ओके, यानी सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय स्नातक एवं बेरोजगार हो गया। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने बीए कर लिया और उसके बाद भी वो
बेरोजगार रहा, उसको कोई रोजगार नहीं मिला। उसने सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया, प्राइवेट शिक्षण किया और अंततः 1902 में बर्न में एकस्व अधिकार कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। जब सोचा जाता था वह अन्य लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहा है, तब आइंस्टीन वस्तुतः अपने स्वयं के विचारों को छुप छुप कर विकसित कर रहा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मजाक में काम के समय अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा करता था। ओके, इज दैट क्लियर? वन ऑफ द फेमस पेपर्स of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. In this mathematical equations, E stand for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 300,000 kilometers square. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Okay? अल्बर्ट आइंस्टीन, देखिए क्या कहा उन्होंने बताया है कि 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था कि उनके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है। वस्तुतः दो पूर्णतः सटीक घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी। यदि वो एक यात्रा के बाद पुनः साथ आए तो उनमें एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही हो। इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निःसृत हुआ, जो कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध को वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? देखिए कि इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, M द्रव्यमान को तथा C निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। लगभग 300,000 किलोमीटर, ठीक है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जब आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं और जो कि स्वभाव से अच्छी है, तो यह 2 मिनट के समान प्रतीत होता है। जब आप गर्म चूल्हे पर 2 मिनट बैठते हैं, यानी कोई बैड पर्सन है उसके पास बैठते हैं, तो यह 2 घंटे जितना प्रतीत होता है। यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said. Einstein put the wedding off. ओके, यानी जब आइंस्टाइन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, तब उनका व्यक्तित्व जीवन असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट अध्ययन समाप्त करने के बाद मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, किंतु उनकी माता उसके विरोध में थी। वे सोचती थी कि मिलेवा, जो कि उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, उसके हिसाब से बहुत बड़ी है। वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से चिंतित थी। मिलेवा बहुत होशियार थी, इसलिए वो चिंतित थी। वह तेरी ही तरह पुस्तक है, उसकी माता ने कहा। आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered
Mileva, meanwhile, was losing her in intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally discovered in 1919 Einstein married his cousin Elisa the same year. ओके, इस युगल ने अंततः जनवरी 1903 को विवाह कर लिया। उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद विवाह में दरारें आ गईं। मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक उच्चाकांक्षा को खोने लगी और उदास गृहिणी बनने लगी। वर्षों की निरंतर लड़ाई के बाद इस युगल ने अंत में 1919 में संबंध विच्छेद कर लिया। आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। ओके, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. ओके, यानी आइंस्टीन का नया व्यक्तित्व जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी। 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया कि वह सटीक है। आइंस्टीन ने पूर्व में ही उस विस्तार की सही गणना कर ली थी, जिस तक कि कुछ पश्चिमी तारों के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उस पर सम्मानों की वर्षा हुई तथा उसे सारे संसार से निमंत्रण मिलने लगे तथा प्रेस द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar, many of them and fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. यानी जब जर्मनी में 1933 में नाजी सत्ता में आए, आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र को उत्प्रवास कर गए, यानी चले गए। ठीक है, वहीं पर जा बसे। 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंड की खोज ने अमरीकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। उनमें से कई उसी समय ठीक वैसे ही जैसे कि आइंस्टीन पलायन कर चुके थे। अब वे डरे हुए थे कि नाजी लोग परमाणु बम बना सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज टर्न ओवर। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलेज, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His word did some of the surrounding
territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. ओके यानी जो उनके एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक बम किसी बंदरगाह में फटकर सारे बंदरगाह को इसके आसपास के प्रदेश क्षेत्र के साथ पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इसके शब्दों का प्रभाव पड़ा। अमरीकियों ने अपनी स्वयं को गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया और इसे जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 को गिरा दिया। ओके, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. आइंस्टीन विनाश के विस्तार से बुरी तरह हिल गए थे। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में और अधिक संलिप्त हो गए, यानी आइंस्टीन राजनीति में अधिक रुचि लेने लगे। अस्त्रों की क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाते हुए अपनी लोकप्रियता को शांत एवं प्रजातंत्र के लिए अभिमान बनाते हुए। ओके, When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. यानी जब आइंस्टीन 76 वर्ष की अवस्था में थे, 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन का देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक विलक्षण प्रतिभा के लिए। ओके स्टूडेंट, I hope you enjoyed my class. Okay, that's it for today. Thank you. All the best.